Namaste, I'm Santosh Khavle representing Dhenutech Solutions Private Limited. We have this company from Pune. We are headquartered in Pune. In this company, we are helping farmers which are dairy farmers. The focus is animal husbandry and dairy farming. We are helping all these farmers from Maharashtra with our solution, which is a digital platform that is helping various farmers from various districts of state of Maharashtra to start with. We have a dream to create this one-stop solution, which is a kind of ecosystem organization in which we are giving farmers one-stop solution for all their problems. The digital platform is very unique and interesting. It has 4 modules. The first module is, of course, acting as a farmer's social media. It is called Munch, where farmers can post their updates and also see the updates of other farmers in the vicinity. They can ask whatever questions and queries they have to the farmers and the experts on the platform. The experts on the platform are answering those questions. So far, we have solved queries of 4,000 farmers, and we have conducted many kind of training programs and awareness programs. Every week, we are having sessions online on Saturday 8 o'clock, that is called Dhenu's webinar, which is covering stories of successful farmers, which is covering stories of the experts that are willing to share what kind of good knowledge that they have for this farming community that is into animal farming. Third module is Pashu Gyan, where they can get access to the animated videos, articles, and many important informations that are practically useful for the farmers. They can share this information with their community and try to adopt to the best possible practices that are promoted by the researchers and also the experts and experienced farmers in the community. Third thing, very important thing, is the animal trading. Here on our platform, we have given free of cost marketplace for farmers. They can provide the information about the animal that they are willing to sell to all other farmers. So if they produce such a kind of profile of animal sale on our platform, they immediately get inquiries either from their own village or nearby villages. This saves a lot of time of the farmers. This saves a lot of efforts of the farmer, and there is a lot of authenticity, because earlier they used to go to the nearby mandis where it is very impossible to get right kind of animal at the right cost. They may get confused. Also at times they get fooled by the mediators and also the sales people. So here there is kind of ecosystem that is nearby villages is providing, which gives them a lot of confidence in buying the next person's animal. The next module that I'm going to talk about is the kind of heart of our module of our platform, and it's called animal management. So this management tool for the animal is providing very important insights which are very timely and proactive for the farmers to manage their adult and baby animals. Once the farmer is creating the animal profile on this particular platform, it is very magical. They put some date to some activity of that animal. Let's say, for example, in the reproductive cycle, they just put the date of administration of AI administration. If they insert this particular date, our platform is capable of generating the whole path, roadmap of the animal on the reproductive cycle. It will tell when exactly they have to
watch the animal for the delivery. When this animal is going to go on the heat again, if the animal is already milking, what they have to do when they have to stop milking that cow or buffalo. It is very important because farmers don't understand how long they can keep on milking the animal. This particular platform helps them to do so. Last but not the least, very important module of this is the profile. So one can create the profile, people can follow those profiles, they can keep on monitoring their history, they can check on what kind of likes they have got for some content. They can follow many other people, experienced farmers and experts on the platform. All this data and digital footprint would be recorded. All likes, the leads that they have got on the platform, all is recorded on this particular module. We as Dhenu are not only working digitally, we have a hybrid approach that we have adapted towards development of the rural community with focus to the farmers and women. We have very interesting module which is called complementary business support. We are providing helping hand to the women and farmers by giving them new business model that they can very easily adopt and earn from it. So it's very interesting for their rural livelihood income generation as a process. So we adopting both the approach digital and real are working now in 3 clusters in Maharashtra in various divisions. We are getting very strong support and very strong interest from the women and the farmers. Now we have reached to 1 lakh farmers in Maharashtra. We have 6,000 plus animals on our platform. Day by day, everything is growing. I thank the support that the Ministry of Agriculture has given to the startup like us. We would look forward to this opportunity and keep on growing. Thank you. मैं विकास चांडक ग्रो इंडिगो के बारे में बताता हूँ। ग्रो इंडिगो एक स्टार्टअप कम जॉइंट वेंचर है। ये माइको ग्रो जो कि भारत की बहुत ही नामी बीज कंपनी है, जिन्होंने लगभग 60-64 साल से किसानों को नए हाइब्रिड्स, बीटी कॉटन जैसी टेक्नोलॉजी दी है। और इंडिगो एजी जो कि यूएस की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, जिन्होंने डिजिटल मार्केट प्लेस, कार्बन क्रेडिट्स और बायोलॉजिकल पे काम किया। इनका संयुक्त उद्यम है। मैंडेट कंपनी का ये है कि किसानों से जुड़ना है, उन्हें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ ड्राइव करना है, जिससे कि आने वाले दिनों में खेती में जो रुकाव हो गया है विकास का, वो कैसे बढ़ाया जाए, और इसके लिए बायोलॉजिकल और डिजिटल मीडियम का यूज़ करती है कंपनी। इसके अलावा कंपनी एक कार्बन प्रोग्राम रन करती है, जो कि भारत का पहला सर्टिफाइड प्रोग्राम है, जिसके तहत किसानों को खेती में मूलभूत बदलाव करने से, नॉर्मली बहुत सारे लोगों को सुना होगा किसान को खेती में ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। यहाँ जो किसान की स्पेशलिटी है कि वो किसान अपनी खेती की तकनीक में थोड़ा सा बदलाव, जैसे कि पडल राइस की जगह डायरेक्ट सीडेड राइस करे, तो उसे कार्बन को ज़मीन में रोकने में मदद होती है, जिसके कारण उसे आमदनी का एक एक्स्ट्रा सोर्स मिल जाता है। तो ये पहली कंपनी है जहाँ पे हम लोग 45,000 एकड़ में ये प्रोग्राम कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट के साथ, जहाँ पे किसान ये मूलभूत बदलाव थोड़े से अपनी तकनीक में बदलाव करके अपनी खेती की नॉर्मल आय से अधिक आय ले सकता है। जब हम बायोलॉजिकल की बात करें तो अलग क्या है, कंपनी पहली कंपनी है जहां भारत प्रदेश में ज़्यादातर बायोलॉजिकल का सोर्सिंग होता है वो ज़मीन से होता है। तो जब कोई कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूट बायोलॉजिकल माइक्रोब ढूंढने की कोशिश करती है जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़्यादा हो या स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, तो वो ज़मीन में से ढूंढती है। जबकि इंडिगो जो कंपनी है वो पौधे के ऊपर के हिस्से से देखती है कि इसमें क्या मूलभूत बदलाव है दो पौधे में, जो एक स्वस्थ पौधा है और जो एक बीमार हो गया एक ही खेत में। तो ये पहली कंपनी है जिसमें दोनों एंडोफाइट जो कि पौधे के अंदर जाके काम करते हैं और एक्सोफाइट जो ज़मीन में रह के पौधे की सतह के साथ जुड़ के, जड़ प्रणाली से जुड़ के पौधे को स्वस्थ और मजबूत रखने में मदद करते हैं। ज़्यादा फोकस कंपनी का किसान का खर्चा कम करना है और उत्पादन बढ़ाना है, इसलिए सीड ट्रीटमेंट से शुरू किया कंपनी ने। अगेन सीड ट्रीटमेंट करते टाइम कंपनी ने सोचा कि माइक्रोब वो ज़रूरी है
जो उस पर्टिकुलर फसल के काम आए। हर माइक्रोब हर फसल के साथ उतनी अच्छी साँठ-गाँठ नहीं बिठा पाता है, तो एक क्रॉप स्पेसिफिक माइक्रोब ढूंढा, मौसम आधारित माइक्रोब ढूंढा कि भाई जो चीज़ गर्मी में चलेगी, जो माइक्रोब गर्मी में अच्छा काम करेगा, वो हो सकता है ठंडी में ना करे काम। तो गर्मी वाली फसलों के लिए गर्मी वाला माइक्रोब, ठंड की फसल के लिए ठंड का माइक्रोब, इस तरह से कंपनी ने क्रॉप ओरिएंटेड प्रोडक्ट किए। आज 6 क्रॉप टाइप्स के लिए अलग अलग फॉर्मुलेशंस है, सोया के अलग हैं, कॉटन का अलग है। तो ये किसान को आमदनी, ये जो जिसको हम 19-20 का फ़र्क बोलते हैं, उसे पूरा करने में और 20 और 21 की तरफ ले जाने में कंपनी मदद करती है। आज किसान 4.5 मिलियन फार्मर से जुड़ी हुई है। लगभग हमने पिछले 2 साल की हमारी जर्नी में 25+ लाख एकड़ों में काम किया है और किसानों को इससे फ़ायदा हुआ है। जो कंपनी की आज का ट्रैक रिकॉर्ड है, एक भी प्रोडक्ट कंप्लेंट नहीं है कंपनी के पास, जबकि ज़्यादा और 13 स्टेट में आज प्रेजेंट है कंपनी अपने अलग अलग वर्टिकल के थ्रू। इसके अलावा किसान की सुविधा के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर के 2 प्लेटफॉर्म खड़े किए हैं कंपनी ने। एक है ऑनलाइन इनपुट परचेज का, जो प्रोडक्ट एग्नोस्टिक है, तो जो FPOs हैं या छोटे दुकानदार हैं जो गांव कोने में बैठे हैं, उन्हें कभी कभी अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट का एक्सेस नहीं हो पाता है और वो बेचारे वंचित रह जाते हैं। तो उन किसानों तक कंपनी का माल पहुँचे, इसलिए एक ऐप है ग्रो ऑनलाइन, जिसके ऊपर हर एक तरह की बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। उसका एक और अच्छा एडवांटेज है कि छोटा दुकानदार है, उसकी एक तो दुकान छोटी होती है, उसकी लागत लगाने की क्षमता कम होती है, तो कंपनी उसे डेली बेस पे भी ऑर्डर फुलफ़िल करती है, वीकली बेस पे उसे चाहिए तो वीकली बेस पे फुलफ़िल करती है। उससे क्या हो गया कि उसे गोडाउन वगैरह मेंटेन नहीं करने पड़ते और उसकी पैसा जो है, जो अपनी पूंजी है, उसे वो घुमा सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। पिछले 1 साल में हमारे साथ 1 लाख रिटेलर 4 स्टेट में जुड़े हैं और ट्रैक्शन बहुत बढ़िया है, लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसमें कंपनी कोई प्राइस कंपटीशन वगैरह पे काम नहीं कर रही है, कंपनी सिर्फ प्राइस डिस्कवरी में मदद करती है और उनके डोर स्टेप तक माल पहुंचाती है। किसानों के लिए एक और प्लेटफॉर्म है जो कि ग्रो मंडी है। उसमें किसान या FPO अपना प्रोड्यूस रख सकता है मंडी पे, जो कि डिजिटल मंडी है, और सामने कंपनी के माध्यम से बड़ी कंपनीज इसे सोर्स करती हैं। तो कंपनी टू कंपनी टाई अप हो जाता है और किसान को अपने भाव की अच्छी गुणवत्ता की वजह से अच्छा भाव भी मिलता है। आपके सामने जो है ये एक कार्बन का केस है, जहाँ पे जिस फार्म ने कार्बन खेती की थी, जहाँ पे उसने DSR ओरिएंटेड राइस करके प्रोड्यूस किया, जिसके मतलब ये है कि उसने पानी का खपत कम किया। पानी खपत कम करने से मीथेन का एमिशन कम हुआ और उसने क्लाइमेट को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो वो राइस है जो हमने प्रीमियम पे, किसान को प्रीमियम पे मिला है, किसान से प्रीमियम पे लिया गया है। और मार्केट में ऐसे काफ़ी कस्टमर्स हैं जो इस तरह की चीज़ों को ढूंढ रहे हैं जहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल कम हुआ हो, सस्टेनेबल प्रोड्यूस हो, तो उन बायर तक कंपनी इन्हें जोड़ती है। तो ये कंपनी के मेन 4 डिवीज़न है जिसके तहत कंपनी काम करती है। और पूरा मोटो है कि अगर कोई डिजिटल का सोच रहा है तो वो ग्रो इंडिगो है, कोई सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोच रहा है तो ग्रो इंडिगो आपको पाई जाएगी, और कोई सोच रहा है कि मुझे कैसे शक्ति प्रदान हो या मेरी कंपनी एम्पावर मुझे कैसे किया जाए, तो चाहे वो किसान हो एग्री वैल्यू चेन में, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, चाहे वो सेलर कंपनी हो या मैन्युफैक्चरर हो जिसे अपने नेटवर्क के बाहर माल बेचना है, पर क्योंकि मोनोपोली देनी है और वो रीच नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्राइस वॉर हो जाता है, तो वो ग्रो ऑनलाइन के थ्रू अपने एक अडिग प्राइस पे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता है और रिमोट में मिल सकता है। और ग्रो मंडी के थ्रू जो किसान का प्रोड्यूस है या FPO का प्रोड्यूस है, उसे सही दाम में सही कस्टमर तक हम पहुंचाने में मदद करते हैं। ये है नटशेल ग्रो इंडिगो का। किसान को जुड़ने के लिए 2 माध्यम है। बायोलॉजिकल की टीम तो 13 राज्यों में जुड़ी हुई है। दूसरा कार्बन के लिए ऐप है, ऐप के साथ एक QR कोड दिया है। किसान को सिर्फ ये QR कोड को स्कैन करना है, वो एक WhatsApp ग्रुप से जुड़ जाता है, उसके ऊपर डेली अपडेट्स और वो आते रहते हैं। रिटेलर को जुड़ने के लिए GST मैंडेटरी है क्योंकि वो प्राइस देखने के लिए उसे, अगर वो GST से, तो वो ग्रो ऑनलाइन ऐप को प्ले स्टोर पे जाके ढूंढ सकता है। जो रिटेलर बंधु हैं जो दूर दराज में बैठे हैं, वो हमारे ग्रो ऑनलाइन ऐप से जुड़ सकते हैं। ग्रो ऑनलाइन टाइप करना है, ग्रो ऑनलाइन, और ग्रो इंडिगो टाइप करने से प्ले स्टोर पे आप ऐप डाउनलोड करके ऐप के बेनिफिट्स और ऐप के थ्रू मिलने वाली जो आपको एनेबलमेंट है वो सब मिल सकती है। कार्बन के लिए नंबर है 7511175118। कार्बन प्रोग्राम में जुड़ने के लिए किसान 7511175118।
फिर से रिपीट करता हूँ 7511175118 पे जाके कार्बन के संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।